I am taking up one more video on calculation of equivalent conductivity, specific conductivity, and molar conductivity. In my previous video, I took up some numerical on the same, and in this video also, so I'm continuing with that to give you more practice of the same. So let's start with the numerical. So the first numerical says the conductivity of an aqueous solution of sodium chloride in a cell is 92 into 10 raised to power minus 4 ohm inverse centimeter inverse. The resistance offered by this cell is 247.8 ohms. Calculate the cell constant for this cell. So it's very simple. मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये एक्सप्लेन किया था, इसके सारे फॉर्मूला बताए थे, तो मैं फिर से बता रही हूँ. यू नो दैट specific conductivity which is denoted by kappa. Specific conductivity is equal to what? This is equal to conductance, और सेल पहले लिख लेते हैं, सेल कांस्टेंट इनटू कंडक्टेंस, सेल कांस्टेंट इनटू कंडक्टेंस. ओके, सो दिस इज इक्वल टू दैट. तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी हमें इस गिवन है, इसकी हमें रेजिस्टेंस गिवन है, हमें क्या निकालना है? वी हैव टू कैलकुलेट सेल कांस्टेंट्स. ओके, कापा इज गिवन टू बी 92 into 10 raised to power minus 4 ohm inverse centimeter inverse. हमें कंडक्टेंस चाहिए, रेजिस्टेंस इज गिवन, दिस इज इक्वल टू 247.8 ohm. So conductance is equal to 1 by 247.8. It will be ohm inverse. So now from here, cell constant will be equal to what? It will be equal to specific conductivity over conductance. So this is 92 into 10 raised to power minus 4 upon 1 by 247.8, and this is equal to, ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करके 2279 सेंटीमीटर इनवर्स. लेट मी चेक द आंसर, जस्ट अ सेकेंड. ये इतना ज्यादा वैल्यू कैसे आ रही है? आई हैव अ डाउट. This is 2.279 because cell constant value इतनी ज्यादा कैसे आ सकती है? It's 2.279 सेंटीमीटर इनवर्स. सो ये बहुत सिंपल न्यूमेरिकल था. अगला करते हैं. मोलर कंडक्टेंस ऑफ अ 1.5 मोलर सोल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज फाउंड टू बी 138.9 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर. सो हियर इट इज गिवन मोलर कंडक्टेंस which is 138.9 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड मोलारिटी दी हुई है सोल्यूशन की 1.5 ohm. What do you need to calculate? You have to calculate specific conductance of the solution. Now you know that relationship between molar conductance and specific conductance, that is lambda m is equal to specific conductance into 1000 upon molarity. Here we have to calculate kappa. So 138.9 is equal to specific conductance into 1000 over 1.5. So from here, this is equal to 138.9 into 1.5 upon 1000, and ये वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू 0.2085 सीमन सेंटीमीटर इनवर्स. ना अगर सीमन में दिया तो सीमन ही लिखिए, अदरवाइज ओम इनवर्स एंड सीमन इज द सेम थिंग, राइट? सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं. द मेजर्ड रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टेंस सेल कंटेनिंग दिस मच मोलर सोल्यूशन. So molarity of KCl solution is given, which is equal to 7.5 into 10 raised to power minus 3. Its resistance is equal to 1005 ohm. You have to calculate specific conductance and cell constant is given, and molar conductance. So आपको cell constant भी given है. Cell constant is equal to 1.25 सेंटीमीटर इनवर्स. आपको क्या निकालना है इसके लिए? स्पेसिफिक कंडक्टेंस. वेरी सिंपल. स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज व्हाट? दिस इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट इनटू कंडक्टेंस. नाउ रेजिस्टेंस इज दिस, देयरफॉर कंडक्टेंस इज 1 by 1005 ohm inverse. So substitute the values here. 1.25 into 1 by
1005, this is equal to 0.001243 ohm inverse centimeter inverse. Second is molar conductance. Again, very simple, straight away from the formula. Molar conductance is what? Specific conductance into 1000 upon molarity. This is specific conductance जो हमने निकाली है, that is 0.00243 into 1000. What is the molarity of the solution? 7.5 into 10 raised to power minus 3 upon calculation. Oops, 1 second. Yes, right. Upon calculation, it will come out to be 165.8 ohm inverse. Sorry, just a second. Ohm inverse centimeter square mole inverse. This is the value of molar conductance. Let's move to fourth numerical. Electrolytic conductivity of 0.30 molar solution of KCl at 298 Kelvin is 3.72 into 10 raised to power minus 2 Siemens centimeter inverse. Calculate its molar conductivity. Now, here also you have been given specific conductivity to be this. Now, what do you need to calculate? Simple, molar conductivity. Molarity is 0.30. So very, very simple numerical. Molar conductivity is equal to specific conductivity into 1000 upon molarity. So 3.72 into 10 raised to power minus 2 into 1000 upon 0.30, and this is equal to 124. Okay, so this is the value of molar conductivity. So numerical were quite simple. This one was also very simple. चलिए अगला करते हैं. A solution containing 2 gram of anhydrous barium chloride in 4. This is first of all not 400. ये value थी 400 centimeter cube of water has a conductivity of 0.0058 Siemens centimeter inverse. Calculate the molar and equivalent conductivity of this solution. So first of all, simple सा logic है. आपको पता है molar conductivity is equal to specific conductivity into 1000 upon molarity. So here we have been given specific conductivity is equal to 0.0058, right? This has already been given to us. Now we need molarity. Molarity के लिए we have been given 2 gram of anhydrous barium chloride in 40 centimeter cube of water. So we need to calculate molarity of barium chloride, right? Now molarity of barium chloride is what? This is equal to number of moles of barium chloride upon volume, that is 400 into 1000, right? Now what are number of moles of barium chloride? For that we need to know molecular mass of barium chloride. So this is equal to, ये आ जाएगा आपका कितना है 200, इसका कितना गिवन है 137 बेरियम का प्लस 35.5 प्लस 35.5, ये आ जाएगी वैल्यू जाके अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 208 इफ आई एम नॉट रॉन्ग. yes it is 208 आ जाएगा जो भी. तो ठीक है, यहाँ से हम निकाल लेते हैं मोलारिटी. सो मोलारिटी ऑफ बेरियम क्लोराइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स. नंबर ऑफ मोल्स मतलब 2 ग्राम अपॉन 2 अपॉन 208 अपॉन 400 इंटू 1000, और ये वैल्यू आ जाएगी आपकी कैलकुलेट करके 0.024 मोलर. सो मोलारिटी आ गई. मोलारिटी is equal to 0.024 molar. Now simple, molar conductivity is equal to specific conductivity जिसकी वैल्यू दी हुई है 0.058 into 1000 upon molarity. This is equal to 241.67 Siemens square, Siemens centimeter square mole inverse. अब हमें चाहिए लैम्डा इक्विवेलेंट, दैट इज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी. तो वैसे तो हम मोलारिटी से नॉर्मलिटी निकाल सकते हैं, ठीक है, मैंने बताया था फॉर्मूला लास्ट वीडियो में कैसे निकालते हैं. नाउ हियर आई विल ड्राइव अ फॉर्मूला
a relationship between, दोनों चीजें ही सेम है, मोलारिटी से नॉर्मेलिटी निकाल लो या रिलेशनशिप बिटवीन लैम्डा एम एंड लैम्डा इक्विवेलेंट निकाल लो. नाउ व्हाट इज लैम्डा एम? लैम्डा एम इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टिविटी into 1000 upon molarity. And what is lambda equivalent? This is specific conductivity into 1000 upon normality. इन दोनों को डिवाइड कर दो, मतलब lambda m by lambda equivalent. This will be equal to what? K into, not K, sorry, kappa into 1000 upon m, kappa into 1000 upon n. This will get cancel out. ये आ जाएगा n upon m. Now m is what? N is number of gram equivalents, and molarity is what? Number of moles. Now you tell me one thing, what is number of gram equivalent? It is mass or amount of electrolyte, not mass, we can say amount, better to write amount of electrolyte upon equivalent mass is number of gram equivalents, and here number of moles is equal to amount of electrolyte in that particular solution upon molecular mass, right? So यहाँ से आ जाएगा lambda m by lambda equivalent is equal to, okay, is equal to molecular mass on equivalent mass. अब हम किसका निकाल रहे हैं? बेरियम क्लोराइड की बात कर रहे हैं, ठीक है. बेरियम क्लोराइड के लिए दिस वैल्यू इज इक्वल टू लैम्डा एम, हमने निकाल लिया है बेरियम क्लोराइड का. ओके, व्हाट इज रॉन्ग विद इट? यस, सो हमने यहां से ये निकाल लिया है लैम्डा एम 241.67. लैम्डा इक्विवेलेंट हमें निकालना है. मॉलिक्यूलर मास होता है 208, हमने निकाला. इक्विवेलेंट मास होता है 208/2, राइट? क्योंकि इक्विवेलेंट मास ऑफ बेरियम क्लोराइड इज व्हाट? मॉलिक्यूलर मास बाय डिवाइडेड बाय चार्ज ऑन के टाइम. बेरियम पे चार्ज +2 होता है, तो 208/2. सो फ्रॉम हियर हम जब निकालेंगे दिस इम्प्लाइज यहाँ से, ओके फाइन, आई कैलकुलेट इट हियर क्योंकि आई डोंट हैव स्पेस लेफ्ट. तो दिस इम्प्लाइज यहाँ से ये स्टार बना के मैं यहाँ सॉल्व कर रही हूँ. सो यहाँ से लैम्डा इक्विवेलेंट आ जाएगा 241.67 अपॉन 2, एंड दिस इज इक्वल टू 120.83 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स. सो बेसिकली लैम्डा इक्विवेलेंट जो हो गया वो हो गया आपका लैम्डा m by 2. यहाँ से जो मैंने किया, यहाँ से लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू लैम्डा m by 2. सो यहाँ से ये आ गया 120.83. आई होप ये आपको विजिबल होगा यहाँ पे. आई डोंट नो इतनी क्लैरिटी है कि नहीं है. ओके, व्हाट आई विल डू, आई विल राइट विद द ब्लैक पेन ओवर हियर, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा ब्राइटनेस आ रही है, तो आई डोंट नो, स्क्रीन की ब्राइटनेस की वजह से आपको शायद ये दिखे ना. तो मैं ये स्टार बना के इसको ब्लैक से सॉल्व कर देती हूँ. सो यहाँ से आ जाएगा लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 241.67 अपॉन 2, विच विल बी इक्वल टू 120.83 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स. सो ये आ गई आपकी लैम्डा इक्विवेलेंट की वैल्यू, ठीक है. चलिए अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं. आई होप आई प्रेफर टू सॉल्व इट विद अ ब्लैक पेन, क्योंकि ब्लैक से ज्यादा क्लैरिटी आ रही है, व्हाट आई कैन सी. चलिए, सो अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ, नेक्स्ट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 20 volts is applied to the ends of a column of n/10 silver nitrate solution, 4 centimeter in diameter and 12 centimeter in length, gives a current of 1.198 ampere. Calculate the specific and equivalent conductivity of the solution. Now for specific conductivity,
यानी कि दिस इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट इनटू कंडक्टेंस। तो हमारे पास दोनों स्ट्रेट अवे नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस कैलकुलेट सेल कांस्टेंट। नाउ सेल कांस्टेंट इज व्हाट, दिस इज इक्वल टू L by A. Now L is given, this is 12 centimeter. Area of cross section हमें निकालना है centimeter. We have been given diameter. So diameter is equal to what? 4 centimeter. So यहाँ से radius क्या आ जाएगी? 2 centimeter. Therefore area of cross section is equal to pi r square. This is equal to 22/7 into r का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, और ये वैल्यू आएगी कैलकुलेट करके 12.57 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो देयरफॉर सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू लेंथ 12/12.57. ठीक है, इसको मैं ऐसे छोड़ रही हूँ सेल कांस्टेंट को. नेक्स्ट इज कंडक्टेंस. नाउ वोल्टेज हमें दी है इज इक्वल टू 20 वोल्ट्स. करंट हमें दिया है इज इक्वल टू 1.198 amperes. Applying Ohm's law, we know that V is equal to IR. This implies resistance is equal to V by I. V है 20, current है 1.198. So upon dividing this is equal to 16.7 ohm inverse. So resistance आ गई, cell constant आ गया, यहाँ से हम specific conductivity निकाल लेंगे. So this is equal to cell constant L by A into conductance. Now resistance आई है हमारी 16.7 ohm inverse. So conductance आ गई 1/16.7. L by A की वैल्यू क्या आई थी? 12/12.57. कंडक्टेंस आई हमारी 1/16.7. So this value will be come out to be 0.057 ohm inverse centimeter inverse. Next was what? Equivalent conductivity. This is simple. Specific conductivity into 1000 over normality. Specific conductivity हमने निकाल ली है 0.057. Normality हमें given है n/10 यानी कि 1/10 यानी 0.1. This value upon calculation will be equal to 570 ohm inverse centimeter square equivalent inverse. Clear? So this was another numerical. I think quite easy था. अगला करते हैं. A conductivity cell when filled with 0.05 molar solution of KCl record a resistance of 410.5 ohm at 25 degrees Celsius. When filled with calcium chloride solution, which is 11 gram in 500 ml, records a resistance of 990 ohm. With specific conductance of 0.05 molar KCl is 0.0189 ohm inverse centimeter inverse. Calculate cell constant, specific conductance and molar conductance of calcium chloride solution. So if you remember, similar numerical मैंने अपने previous video में कराए हैं. If you have gone through that video, जिसमें हमें ये दिया होता है कि हम एक कंडक्टिविटी सेल को पहले एक सोल्यूशन से फिल करते हैं, फिर उसको निकाला, फिर उसको दूसरे सोल्यूशन से फिल करते हैं. तो हमें जो दूसरा सोल्यूशन होता है उसके लिए हमें सेल कांस्टेंट और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालनी होती है. सो उसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें ये देखना होता है जो हमारा फर्स्ट सोल्यूशन का डेटा दिया है उससे हम सेल कांस्टेंट निकाल सकते हैं. क्योंकि जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं पहले वाला, लाइक इन दिस केस KCl and then calcium chloride, both have been taken up in the same conductivity cell. So एक पर्टिकुलर कंडक्टिविटी सेल का सेल कांस्टेंट तो सेम होगा. सो जो फर्स्ट डेटा है KCl का डेटा, उससे हम सेल कांस्टेंट निकाल के उसको हम कैल्शियम क्लोराइड वाले जो भी कैलकुलेशंस हैं हम उसमें यूज करके वी विल कैलकुलेट व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड फॉर कैल्शियम क्लोराइड. सो लेट मी राइट व्हाटएवर इट इज गिवन. सो फॉर KCl it has been given that molarity is 0.05 molar, resistance is 410.5 ohm, और इस सोल्यूशन की स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी कि कंडक्टिविटी इज 0.00189 ohm inverse centimeter inverse, right?
नाउ फॉर कैल्शियम क्लोराइड व्हाट इज गिवन, कैल्शियम क्लोराइड की हमें मोलारिटी नहीं दी है, हमें दिया है 11 ग्राम्स इन 500 ml, लेकिन इसकी रेजिस्टेंस दी है 990 ओम. वी हैव टू कैलकुलेट सेल कांस्टेंट फॉर दिस. सेल कांस्टेंट तो जो इसका आएगा वही इसका आएगा. सो सबसे पहले सेल कांस्टेंट निकाल लेते हैं. सेल कांस्टेंट. नाउ वी नो दैट specific conductivity is equal to cell constant into conductance. Now ये जो हमारा KCl है इसकी रेजिस्टेंस दी है 410.5 ohms ओम. सो यहाँ से कंडक्टेंस हो गई 1/410.5 ओम इनवर्स. नाउ देयरफॉर सेल कांस्टेंट हो जाएगा इक्वल टू कंडक्टिविटी अपॉन कंडक्टेंस. कंडक्टिविटी कितनी गिवन है 0.00189 अपॉन कंडक्टेंस 1/410.5. दिस इज इक्वल टू 0.7758 सेंटीमीटर इनवर्स. तो दिस इज द वैल्यू ऑफ सेल कांस्टेंट. ये तो आ गया. सेकंड हमें निकालना है स्पेसिफिक कंडक्टेंस. नाउ सेकंड इज specific conductance of calcium chloride solution, right? So specific conductance of calcium chloride, again this is equal to what, cell constant into its conductance, right? अब सेल कांस्टेंट जो KCl का आया वही इसका सेल कांस्टेंट है क्योंकि एक ही सेल है, सेम ही होगी सेल कांस्टेंट की वैल्यू as I told you. So this is equal to 0.7758 into conductance. अब इसकी रेजिस्टेंस क्या है 990 ओम, राइट? तो यहाँ से कंडक्टेंस हो जाएगी 1/990 ओम इनवर्स. So this is equal to 0.7758 up into 1/990. And this value will come out to be 0.00078 approximately 3. चलो 36 ही ले लेते हैं, 4 नहीं करते इसको. ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स. तो ये आ गई आपकी स्पेसिफिक कंडक्टेंस. नाउ व्हाट डू यू नीड टू कैलकुलेट? मोलर कंडक्टेंस. नाउ मोलर कंडक्टेंस, फॉर मोलर कंडक्टेंस यानी कि lambda m, we know that this is equal to K into 1000 upon molarity. अब मोलारिटी तो हमें गिवन ही नहीं है इसकी. मोलारिटी ऑफ कैल्शियम क्लोराइड हमें निकालनी पड़ेगी. मोलारिटी ऑफ कैल्शियम क्लोराइड ये निकालनी पड़ेगी. दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम क्लोराइड. पहले तो आप मॉलिक्यूलर वेट निकाल लीजिए ऑफ कैल्शियम क्लोराइड. दिस इज इक्वल टू 111 ये होता है. तो यहाँ से 11 ग्राम्स इन 500 ml है, तो 11 अपॉन 111 अपॉन 500 इंटू 1000. तो ये आ जाएगी वैल्यू इक्वल टू 0.198 आई गेस. जस्ट अ सेकेंड. यस, ये आएगी 0.198. सो यहाँ से आपकी मोलर कंडक्टेंस हो गई. इसकी कंडक्टिविटी कितनी आई थी 0.0007836 इंटू 1000 अपॉन 0.198. हेंस मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगी 3.96 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स. अब अगर आपको यहाँ से लैम्डा इक्विवेलेंट निकालना हो वो भी आप निकाल सकते हैं. वैसे यहाँ पे मैंने पूछा नहीं है, मतलब न्यूमेरिकल में है नहीं, बट अगेन जो मैंने आपको रिलेशनशिप बताया था कि मोलर कंडक्टेंस ओवर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट. कैल्शियम क्लोराइड का इक्विवेलेंट वेट होगा 111/2 बिकॉज कैल्शियम पे चार्ज +2 है. तो यहाँ पे आप ये भी निकाल सकते हैं इफ इट इज आस्क्ड. सो दिस वाज द वन मोर न्यूमेरिकल ऑन स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टेंस. अब अगला न्यूमेरिकल देखते हैं.
When a certain conductivity cell, okay, was filled with 0.1 molar KCl solution, it had a resistance of 85 ohm at 25 degrees Celsius. When the same cell was filled with an aqueous solution of 0.052 molar of an unknown electrolyte, the resistance was 96 ohm. Calculate the molar conductivity of the unknown electrolyte at this concentration. स्पेसिफिक कंडक्टिविटी दी हुई है 0.1 मोलर KCl की. ये जो मैंने पिछला न्यूमेरिकल किया है एग्जैक्टली वही है, इसमें आपको मोलैरिटी स्टेट अवे दी हुई है. जैसे पिछले में हमने कैल्शियम क्लोराइड की निकाली थी विद फ्रॉम द गिवन डेटा, यहाँ पे जरूरत नहीं है. यहाँ पे मैंने जो ये न्यूमेरिकल है इसके साथ के मैंने बहुत सारे न्यूमेरिकल अपने पिछले वीडियो में कराए हैं. सो आई विल शेयर द लिंक टू दैट वीडियो, यू कैन गो थ्रू दैट. ये एग्जैक्टली वैसे ही न्यूमेरिकल हैं जो मैंने अपने पिछले वीडियो में कराए हैं. सो आई थिंक देयर इज नो नीड ऑफ टेकिंग अप दिस न्यूमेरिकल अगेन. इनफैक्ट जो पिछला न्यूमेरिकल है वो भी यही है. KCl के डेटा से हम क्या निकाल लेंगे, हम निकाल लेंगे सेल कांस्टेंट. सेल कांस्टेंट को यूज करके हम निकाल लेंगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ कांस्टेंट से हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ अननोन इलेक्ट्रोलाइट निकाल लेंगे और वहां से हम निकाल लेंगे उसकी मोलर कंडक्टिविटी. तो ये वही जैसे पिछले न्यूमेरिकल में किया ये वैसे ही करना है. सो दिस इज द सेम वन. A conductivity cell has its electrode 1 centimeter apart and has area of cross section 2 centimeter square. When filled with N by 50 mx कोई electrolyte है, the cell shows a resistance of 166.5 ohm. Calculate the equivalent conductance of mx at the given concentration. अब यहाँ पे आपको सीधा cell constant given नहीं है, आपको बेसिकली देखिए इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालनी है. पहले मैं लिख लेती हूँ. इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज व्हाट इट इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू 1000 अपॉन नॉर्मैलिटी. राइट, आपको नॉर्मैलिटी गिवन है n by 50 1 by 50 गिवन है, आपको स्पेसिफिक कंडक्टेंस चाहिए विच इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट इनटू कंडक्टेंस. स्ट्रेट अवे नहीं दिया, L by A होता है एंड दिस इज इक्वल टू 1 by R है ना. सो यहाँ से आपका L की वैल्यू दी है 1 सेंटीमीटर बाय 2 इंटू ये दिया है 1 by 6 दिस थिंग. सो ये आ गया आपका 0.5 अपॉन 166.5. मैं इसको सॉल्व नहीं कर रही, ये आ गया आपका स्पेसिफिक कंडक्टेंस. अब यहाँ से बस लैम्डा इक्विवेलेंट निकाल लीजिए. 0.5 अपॉन 166.5 इंटू 1000 अपॉन नॉर्मैलिटी इज 1 by 50. ये वैल्यू आ जाएगी 150.15 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स. तो सिंपल था, ठीक है. आई थिंक 10th भी न्यूमेरिकल वही है. Resistance of a conductivity cell filled with 0.1 molar KCl solution is 100 ohms. If the resistance of the same cell filled with 0.02 molar solution is 520 ohm, calculate the conductivity and molar conductivity of 0.02 molar KCl solution. Specific conductivity 0.1 molar KCl की दी है, आपको 0.02 मोलर के लिए निकालनी है. सो ये भी जैसे मैं बता रही हूँ पिछला जो हमारा न्यूमेरिकल है ये वैसा ही है जैसे मैंने 8th न्यूमेरिकल बोला, ये मैंने 7th न्यूमेरिकल कराया. मतलब KCl जो फर्स्ट KCl सोल्यूशन है 0.1 मोलर KCl सोल्यूशन, इसकी रेजिस्टेंस दी हुई है 100 ओम, इसकी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी दी हुई है 1.29 इंटू 10⁻⁻² ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स. ठीक है, तो ये दी हुई है. हमें यहाँ से सेल कांस्टेंट निकाल लेना है. सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू स्पेसिफिक दिस ओवर ये आ जाएगा आपका 1.29 इंटू 10⁻⁻² अपॉन 1 by 100. यहाँ से जो भी सेल कांस्टेंट की वैल्यू आएगी उसको आप 0.02 मोलर KCl के लिए यूज करेंगे. मतलब सेल आपको स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ इसकी निकालनी होगी जब 0.02 मोलर KCl सॉल्यूशन की. दिस इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट जिसकी वैल्यू यहाँ से आएगी जो भी आप कैलकुलेट करिएगा. ये 1.29 आ गई ना, ये 100 ऊपर गया तो दिस केम आउट टू बी 1.29 इंटू इसकी कंडक्टेंस.
सो इसका हो गया 1.29 कंडक्टेंस इसकी होगी, इसका वो कितना है रेजिस्टेंस दिस। सो यहाँ से इसकी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी आ गई। बस अब क्या करना है, अब आपको इसकी लैम्डा इक्विवेलेंट निकालना है। दिस इज इक्वल टू 1.29 अपॉन 520, ये जो आपका स्पेसिफिक कंडक्टिविटी आया, इनटू 1000 अपॉन इट्स क्या निकालनी है इसकी नॉर्मेलिटी। अच्छा आपको इसकी मोलर कंडक्टिविटी निकालनी थी, सॉरी, बिकॉज आपको मोलैरिटी दी हुई है। सो यहाँ पे lambda m is equal to specific conductivity into 1000 upon molarity which is 0.02। तो ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। So this is again the same numerical as we did previously, like question number 7th or 8th I guess। चलिए अब I think this is the last numerical of this particular type, so let us do that। The electrical resistance of a column of 0.05 molar NaOH solution of diameter, so here diameter is given, this is equal to 1 centimeter and length is what 50 centimeter, is क्या दी हुई है इसकी resistance 5.55 into 10 raised to power 3 ohm। resistivity निकालनी है। now resistivity rho is what, it is the reciprocal of conductivity फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस निकालिए, उससे आ जाएगी आपकी, उसका रेसिप्रोकल करके आ जाएगी आपकी रेजिस्टिविटी। दिस इज व्हाट, दिस इज रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी तो आपको पता है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट इनटू कंडक्टेंस। अब यहाँ पे आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं दिया, मतलब डायमीटर दिया है। डायमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, देयरफॉर रेडियस इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर। सो यहाँ से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आ गया पाई आर स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 22/7 इंटू 0.5 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0.785 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास ए आ गया, एल हमें गिवन है, आर हमें है गिवन 5.55 इंटू 10⁻³ सो कंडक्टेंस हो गई हमारी 1/5.55 इंटू 10⁻³। सो यहाँ से आपका कंडक्टिविटी आ गई सेल कांस्टेंट विच इज एल 50/A 0.785 और 785 इंटू 1/5.55 इंटू 10⁻³ तो ये सब आ जाएगा सॉल्व करके दिस whatever इसकी वैल्यू आएगी, आई डोंट नो द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ दिस, बट ये जो भी आएगा इसका आप रेसिप्रोकल लीजिएगा। होल्ड ऑन जस्ट अ सेकेंड, I need to calculate this right now, I don't have a calculator near me। so यहाँ से आप क्या करिएगा, ये जो भी वैल्यू आएगी, सपोज x आती है लेट, तो यहाँ से जो आपकी रेजिस्टिविटी हो जाएगी दैट विल बी 1/x। सो ये जो वैल्यू आ रही है इसका आंसर जो बता देती हूँ वो आ रहा है 87 पॉइंट, आपको क्या क्या निकालना है, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी। ओके जस्ट अ सेकेंड, आई गॉट अ कैलकुलेटर, वेट मैं निकाल ही देती हूँ ये वैल्यू। ये आ गया यहाँ से कैलकुलेट करके 50/0.785 इंटू दिस, ये आ जाएगा आपका 0.01148 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ये आ गया आपका कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी आ गई, अब आपको चाहिए रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू 1 बाय कंडक्टिविटी 1 अपॉन 0.0 नॉट 0.0148। सो रेजिस्टिविटी आ जाएगी यहाँ से 87.135 ओम सेंटीमीटर, उसके यूनिट उसके ऑपोजिट हो जाएंगे। नेक्स्ट इज व्हाट, मोलर कंडक्टिविटी। मोलैरिटी हमें गिवन है 0.05 इज इक्वल टू 0.05।
So molar conductivity is what? Conductivity into 1000 is equal to molarity. So conductivity हमने क्या निकाली थी पीछे? Conductivity निकाली थी हमने 0.01148 into 1000 upon molarity 0.05. So ये आ जाएगा कैलकुलेट करके 229.6 ohm inverse centimeter square mole inverse. So ये हो गई आपकी molar conductivity of this NaOH solution. So we are done with the numerical on molar conductivity, specific conductivity and equivalent conductivity. So these were some numerical, some unsolved numerical from various books. Practice all of them. Please do practice all of them. They are quite easy, but statement बहुत लंबी होती है, इसीलिए sometimes you get confused. So there is nothing to get confused or worry about. Numerical simple है, practice करने से आपको अच्छे से numerical आ जाएंगे.